Assalamu alaikum everyone. Myself Mehak Sahir and welcome to my channel, and I am back with another video regarding the fields and their perspectives. So as I promised you all कि मैं सबके questions का answer करूँगी, and there is another question regarding to allied health fields or switching the field. So this is a completely opinion based video. Opinions may differ from person to person, so this is my opinion. So let's talk about it. But before moving towards our video, our topic, so which I am talking about. So first of all, I would like to tell you all about myself, because it's necessary to know whether you are listening to a proper person or not. So I am a Form D student myself, Mehak Zahir. You all know this. I am a Form D student and currently studying at Dow University of Health Sciences. And I have created this channel just to help out you students who are currently studying pre medical or planning to get into a medical university, so that they can have a broad spectrum of studies of every field, and they can choose their career according to their perspective as well. So let's get started. So, choosing a field, choose your career, allied health field sciences, or switching your field. This is the most important question a lot of students ask to me in my inbox. So, let's talk about it. अलाइड हेल्थ फील्ड, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि अलाइड हेल्थ फील्ड्स क्या हैं. अलाइड हेल्थ फील्ड्स लाइक न्यूट्रिशन, बीएस न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड साइंसेस, a lot of other fields are there, nursing. These are the allied health field sciences, you can say. So one of my student asked me, okay, tell me about allied health field sciences, or I should switch my field. So I told her, and I thought कि आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि allied health field sciences are good enough. I have said in my last two videos कि फील्ड्स का कंपैरिजन नहीं है. तो फील्ड्स का कंपैरिजन नहीं है. इफ़ यू आर learning, or you are willing to learn, or willing to gain knowledge about certain field, it's totally up to you. But choosing a career and choosing a passion, it's totally different. ये बिल्कुल अलग चीज़ है. इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि लाइक आप बोलो कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पॉइंट, बट इट्स नेसेसरी कि आपको पता हो कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो व्हाट स्कोप इट कंटेन्स, और क्या चीज़ वो ऑक्यूपाई, क्या स्कोप ऑक्यूपाई कर रहा है वो वेयर यू आर लिविंग. सो इन पाकिस्तान अलाइड हेल्थ फील्ड्स का इतना स्कोप नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है आगे. बिकॉज वी आर टॉकिंग एट एवरी एस्पेक्ट, यू नो. बिकॉज देखो, ऐसा नहीं है कि लाइक आपको अपनी लिविंग भी करनी है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस अलाइड हेल्थ फील्ड साइंसेज जो हैं दे आर नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, और इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इन पाकिस्तान. एंड you all are much more aware about it. It's a practical opinion of mine. Maybe differ करे, ये सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं इससे रिलेटेड. ओके. सो राइट फील्ड साइंसेज लाइक BS न्यूट्रिशन, BS नर्सिंग, और फूड एंड साइंसेज. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अचीवमेंट्स. स्टूडेंट आस्क मी कि इसमें अचीवमेंट है नहीं है, और क्या हम इसमें आगे कर सकते हैं. आई हैव रिटन हेयर नर्सिंग, BS न्यूट्रिशन, बिकॉज आई एम जस्ट मच मोर अवेयर अबाउट दीज टू fields. Maybe there are other fields as well. One more field I am recalling is psychology. Psychology is a very good field to study according to your passion. If you are willing to learn psychology, if you are willing to learn the mind of people, if you love to play with the minds of the people, but it's according to profession, I would say it's not as much good. Because once again I would like to mention it, I am talking it about or according to my personal experience or personal observation. It may differ, it's my opinion, maybe it differ, but according to Pakistan there are not as much scope
or there's no as much importance given to these fields given to allied health field sciences as well. So switching the field, which I have skipped in my last previous slide, switching the field. So I would suggest you all to switch your field. There are much more important fields as well. Like you can do CMA. One of my good friend, you can say she's my best friend. She is doing CMA from ICMA Pakistan, and you can switch your field because it has a biggest scope in Pakistan as well, and you get a degree of British Council. So it's much more important as ब्रिटिश काउंसिल की डिग्री और लंदन यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी. तो आई थिंक इट्स बेटर आइडिया टू स्विच योर फील्ड बिकॉज बेटर ऑप्शंस अवेलेबल. ठीक है. सो फर्स्ट प्लेस, don't compare, it's my motive. Don't compare any field to other field, right? Second perspective is know your worth. Know your worth is a important point because देखो हर किसी को अपनी वीकनेसेस का पता है, हर किसी को अपनी स्किल्स का पता है. तो अपने स्किल्स के हिसाब से फील्ड को चूज़ करना, ऐसे चूज़ कर लेने से फील्ड बस इसलिए कि भाई जिधर आपको जिसने जो बोला आप उसमें चले गए, उससे आपका अपना ही नुकसान है. अगर आपके अंदर स्किल, फॉर एग्जांपल आपके अंदर स्किल है इंजीनियरिंग वाली और आप किसी के कहने पे मेडिकल में आ गए, तो ये फिर एक अलग मामला हो जाएगा. आपके अंदर अगर स्किल मेडिकल की और आप इंजीनियरिंग में चले गए, कंप्यूटर साइंस में चले गए और आर्ट्स रख ली, तो ये गलत है. अगर आपका स्किल आर्ट्स में है तो आप वहाँ जाओ. स्किल बेस्ड चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मैं मेडिकल की फील्ड्स को ही जो है प्रायोरिटी दूँगी. तो डोंट कंपेयर मेडिकल फील्ड्स विद अनदर. हर चीज़ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन once again my topic is allied health sciences field, and इसका स्कोप पाकिस्तान में इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट और टू बी प्रैक्टिकली स्पीकिंग. सेकेंड चीज़ नो योर वर्थ में जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि certain students after their MBBS exam, basically NTS exam, because अब तो PMC आ गया है. I will talk about it in another video. PMC के जितने भी फ्लॉज हैं, जितने भी सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं, उन सब से आप सब अवेयर हैं. और आफ्टर द MBBS स्टूडेंट्स बस यही सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, किस चीज़ को अपना जो है वो फ़ोकस रखें, किस चीज़ को अडॉप्ट करें, किस फ़ील्ड में जाएँ, किस फ़ील्ड में एडमिशन लें, क्या करें, ये सारे सवालात जो हैं वो स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे होते हैं. ठीक है. लेकिन इन सब सवालात के साथ-साथ आपको क्या करना है, आपको अपने आप को देखना है कि भई आप कोई ऐसी-वैसी फ़ील्ड में नहीं चले जाओ कि जिसके बाद आपको पता है जिधर आप रह रहे हो, उधर आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. सही है? तो इसको ज़हन में रखना है. एंड लास्टली आई हैव मेंशन्ड नो योर स्किल्स. आपको अपनी क्या करनी है, स्किल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई फिर से वही वाली बात है, मेडिकल की स्किल्स हैं, इंजीनियरिंग में चले गए, इंजीनियरिंग की स्किल्स हैं, मेडिकल में आ गए, तो ये गलत बात हो जाएगी, फिर मामला ख़राब हो जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, my hobbies and my interests, these are not my hobbies. These are your hobbies, right? According to your pace इसको चूज़ करो. सही है. आपकी इंटरेस्ट और आपके हॉबीज़ मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लिखा है बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि भाई हमारी तो हॉबी ये थी. भाई हॉबी एक अलग चीज़ होती है, इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है. आप अपने हॉबी को अपना जो है वो करियर नहीं चूज़ कर सकते. हाँ, इंटरेस्ट के बेस पे तो आपको अपना करियर चूज़ करना ही होता है. ठीक है. तो दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा क्या था, ये था मेरा टॉपिक अलाइड हेल्थ साइंसेस, बट बीच बीच में मैंने ये क्या डाल दिया, ये क्या मैंने लिख दिया, ये क्या एडिट कर दिया मैंने. ये मैंने इसलिए एडिट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं. एक वीडियो देखी किसी की और उसमें क्या किया, अलाइड फील्ड साइंसेस की वीडियो देखी, भाई अलाइड फील्ड साइंसेस का तो स्कोप ही नहीं है, भागो यहाँ से भागो. मैंने फॉर्म डी की वीडियो बनाई, भाई फॉर्म डी का अच्छा बता दिया इन्होंने, भागो भाई वहाँ भागो. नहीं, मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए एडिट की है, अपनी इंटरेस्ट, अपने स्किल्स, अपनी वर्थ के हिसाब से ना आपको चूज़ करना है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट. पर्सनल स्किल्स,
वंस अगेन पर्सनल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, योर रिसर्च। अगर आपके अंदर रिसर्च, मैंने बहुत कम मेंशन किए हैं, आपकी अपनी अपनी स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है। आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया। और मैं जब जस्ट आपको क्या कर सकती हूँ, आपको एक आई कैन शो यू द वे, बट आपको क्या करना है, चूज़ खुद ही करना है। प्रोएक्टिविटी, कोलेबोरेशन, अ लॉट ऑफ अदर पर्सनल स्किल्स आर देयर which differ from person to person, so it totally depends upon you, right? Moving forward, don't get confused, I'm repeating, don't get confused between your passion and profession. Your passion is something else and your profession is something else. Your passion is something you are willing, you love to do it. पैशन कभी नहीं छूटता आपसे, लेकिन प्रोफेशन हमेशा आपका वही बनता है जहाँ पे आपकी स्किल्स होती हैं, राइट? अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई पैशन के लिए भी तो स्किल्स होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पैशन के लिए भी स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन पैशन्स के लिए स्किल का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है, इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ का शौक रखते हैं ना, तो फिर आप उसको हर तरह से सीख लेते हैं, राइट? हर तरह से, ठीक है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन योर पैशन एंड योर प्रोफेशन, राइट? और प्रोफेशन के लिए आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल टॉक। सही है, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे बातें हो रही हैं बिटवीन योर पैशन एंड योर प्रोफेशन, राइट? प्रोफेशन के लिए स्किल्स होना ज़रूरी है, अगर आपको नहीं आती तो यू हैव टू लर्न इट, राइट? और पैशन इज समथिंग, और आपके अंदर नेचुरली भी उसकी स्किल्स प्रेजेंट होती हैं, तभी वो आपका पैशन बनता है। सही है, ओके। दिस इज़ आई गेस इट्स इनफ। लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, साइकोलॉजी। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 20 to 25 स्टूडेंट्स टेक्स्टेड मी द सेम क्वेश्चन कि हम साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर काउंसलिंग की चीज़ें हैं, हमारे अंदर काउंसलिंग या थेरेपी से रिलेटेड काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं। तो साइकोलॉजी अच्छी फील्ड है। इसका मैं आप लोग को एक अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस बताऊंगी। वो ये है कि समवन टोल्ड मी कि भाई साइको आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, आजकल ऑनलाइन डिग्रीज मिल रही हैं, हर चीज़ हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। अब ज़माना मतलब बहुत आगे आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब हम बैचलर डिग्रीज भी ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट? तो इसमें क्या है कि साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी आप पढ़ो बिल्कुल, माइंड रीडिंग करना, ये सारी स्किल्स आनी चाहिए आपको, आप कर सकते हो, लेकिन एज अ प्रोफेशन आप इसको चूज़ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग इन पाकिस्तान, राइट? इफ़ यू आर विलिंग टू गो अब्रॉड, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ओके। सो लेकिन यू हैव टू कीप योर साइड सेफ। अब अब एक क्वेरी में यहाँ पे एक और क्लियर करना चाहूँगी। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि भाई आपको इतनी सारी फील्ड्स का पता है, तो आपने फॉर्म डी ही क्यों चूज़ की? मैंने फॉर्म डी इसलिए चूज़ की बिकॉज इट वाज ऑलवेज मेंट फॉर मी, इट वाज ऑलवेज मेंट फॉर मी, इट वाज ऑलवेज माय प्लान बी। एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी के MBBS and between Form D, between MBBS and between Form D. Inshallah, I will talk about it as well. And this is my personal story. I will really share it with you all guys, ताकि आप लोगों की भी पर्सनल काउंसलिंग हो और उन सब लोगों की भी गाइडेंस हो जो लोग ये समझते हैं कि लाइक it's a very easy decision. No, it's not a easy decision, it's always a hard part of your life. It's the toughest part of your life, I can say, I would say, and it is. अभी जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, वो रिलेट कर सकेंगे, वो वाले जिन जो अब एडमिशन सीकर्स हैं, जो इस टाइम में हैं, वो सब क्या कर रहे होंगे, वो सब अब मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। एंड हर यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है? सो psychology as a profession, you cannot go with it as a profession, but as your passion you can go for it, you can learn it online, you can do a lot of courses of psychology, and a lot of things are available online. You guys just have to explore them and just have to know about them. So it's enough. Thank you and good luck to each one of you. And these three things are much more important
to be successful in your life. Believe in yourself. There is nobody is going to believe you. You just have to believe yourself into yourself, right? Encourage yourself. चाहे मैं आपको कितना भी कुछ बोलूं, जब तक आप अपने आप को खुद encourage नहीं करोगे, you cannot achieve it, right? Good days are ahead. Yes, good days are ahead. If you are working hard, if you are willing to do something, surely it will come to you, and surely you will be successful, right? So good days are ahead, and thank you for watching me. And if you need some other guidance or कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं, so just put it in the comment, or you just guys can message me on Instagram or Facebook. So it's up for today. Thank you so much, everyone.